वाहिगुरु जी। हम सरदीन दयाल न तुम सर, अब पति यार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूरन दीजै। हाँ बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कवने बोल। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। पंज प्याले पंज पीर, पंज प्याले पंज पीर। छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट कै मूरत हरगोविंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां, रूप दिखावन वारो वारी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा वर्ण न साकों, तू ठाकुर उच भगवाना। जुगो जुग टल चवर छतर तख्त दे मालिक, गुरता गद्दी ते विराजमान दसां पातशाहियां दी जागदी जोत। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर हाजरियां लवा रहे सत्कारयोग गुरु प्यारे खालसा जी। आप जी जिस स्थान ते बैठे हो, ये स्थान इत्थों की महिमा बहुत वड्डी भारी है। इत्थे जो उपदेश गुरु साहब ने दता और इत्थों की संगत ने सामया, वो भी कमाल है। जिस वक्त गुरु हरगोबिंद साहब जो अजकल गुरुद्वारा चरण कवल साहब बंगियां दे विच आ गया, इत्थे लगभग महीने तक महाराज रहे गुरु हरगोबिंद साहब। उतों इस इलाके की संगत ने गुरु साहब नूं बेनती करके इत्थे सद्दिया कि महाराज इधर आले दाले तुहानूं सारिआं नूं पता ही है, पर कल्ला तुसीं नहीं सुणदे। अजकल जिहड़ा लाइव चल पिया, विदेशां 'च बैठे संगत सुन लैंदी है, अज नहीं सुणदी। कई बार 5-5 10-10 साल बाद संगत सुनती है। इत्थे दे लोकां विच सखी सरवरीए गुगे लालां वाले कोटलीए इन्हां दी बड़ी, कई सारे लोग जिहड़े आले दाले रंगड़ रहिंदे सन, उन्हां दी बड़ी पूजा करते सन। सिख संगत ने महाराज नूं बेनती की, महाराज साडे ते भी कृपा करो। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने आप अपने हथीं इस स्थान उत्ते 5 इट्टां रख के, देखो किड्डी वड्डी गल, धर्मशाला कायम की, गुरुद्वारा बनाया। वो कमरा अज भी सामया पिया तुहाडे इत्थे।
ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਧਰ 5 ਪੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ 5 ਤੀਰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਊਜ ਛੇੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਚੇ ਥੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਜਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਮੂੰਗਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਟ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰੀ ਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰੀ ਆਵਲੇ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਨੁਹਾਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨ, ਜਿਹਦੀ ਜੜ ਆਪ ਬੰਨ ਗਏ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸੋ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੀਰਤਨੀਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਦਾਰ ਤਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲੇ ਕਿਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕੀਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਰਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਡਭਾਗੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਰਦਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਗਏ ਸਨ, ਕੱਲ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸਨ ਪਿਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਇਓ। ਚਲੋ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੜੀਵਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
उस तरीके आपां गुरु हरगोबिंद साहब के जीवन संबंधी गल्लां करते जावांगे। शुरुआत मैं थोड़ी जी प्रकाश तो लैके फिर अगे लड़ीवार कथा अज मैं तुहानूं सुणाउणा, जिन्नी होगी उत्थे रोकदा। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के पिता गुरु अर्जन देव जी तुहानूं सब नूं पता है, माता माता गंगा जी, उन्हां दा प्रकाश जिन्हों असी अपने शब्दां च जन्म कह दिंदे, सिख प्रकाश ही कहंदा है, पर जिहड़े पुरातन स्थान ने ना उत्थे जन्म स्थान है लिखिया जी। मैं ननकाना साहब गया, मेरे नाल सन बाद विच आउणगे गुरु घर दे बड़े प्यारे कीर्तनी भाई बलदेव सिंह बुलंदपुरी साहब, बड़े सहज विच मिठास रस पिन्ना कीर्तन करते हैं, वो भी नाल सन। उत्थे गुरु नानक साहब ननकाना साहब जिथे महाराज का प्रकाश हुआ स्थान देखिया, उत्ते लिखिया जन्म स्थान। फिर गुरु रामदास साहब महाराज जी का चूना मंडी लाहौर वाला स्थान, असी लाहौर गए, उत्थे भी गुरु रामदास साहब जी के प्रगट स्थान के उत्ते भी जन्म स्थान गुरु रामदास साहब लिखा होया। शब्द ते माड़ा नहीं है भी, पर एक सिख की शरधा है, सिख की शरधा है कि सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मैं रहा समाए। समय के अनुसार वो प्रकाशमयी हो गए, प्रगट हो गए, तो वो है इत्थे ही चले किते नहीं गए। इस तरीके महाराज साहब सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी का आउणा शरीर कजामा धार के माता गंगा जी की कुखों गुरु की वडाली नगर होया। साध संगत बाबा बुढ़ा जी के बचना नाल वो सारी कला वरती, पर जदों गुरु जी का जीवन पढ़ते हैं ना गुरु हरगोबिंद साहब, उन्होंने जीवन में वो कुछ मिलता है जे किते शरधा भावना नाल सुन लईए। कई बंदियां नूं बड़ी आदत हुंदी है ना जी लांबे जी देण दी, अगे जी मैनूं ते बड़े दुख ने जी, मैनूं ते कई परेशानियां झलनियां पै गईयां जी, मेरे लिए कोई राह नहीं छड्डिया रब ने। जे गुरु साहब का जीवन सुन लाए तो तुसीं देखोगे उन्होंने अपनी जिंदगी विच किड्डे किड्डे संघर्ष भी कीते। उन्होंने दी पूरी जिंदगी इस तरह छोटा बचपन तो ही तुसीं वेखो की करेगा, कोई जन्म हो गया प्रकाश हो गया, घर दे विचों मां बाप नूं माता पिता नूं तां खुशी है, सखा ताया पिरथी चंद बच्चे दे जन्म ते सब नूं खुशी हुंदी, सखे ताए दे घरें कह लो कि एक तरह सत्थर विछ गए, उहदी घरवाली करमों इन्नी रोई कहन लगी इन्हां दे घर बच्चे ने जन्म क्यों ले लिया। चलो कई बार मन मुटाव सब दे मन च हुंदे आ, इंसानी फितरत है, पर साध संगत इन्ना भी कोई डिग जाता है। बचपन दे विच जदों तक तुरन भी नहीं सन लगे उदों तक शरीर दे उत्ते कई हमले करवा दिते गए। देखो की मैं तुहानूं गिना दिना, एक पिरथी चंद ने सिर्फ मन दी ये भी गुरगद्दी सानूं मिल जाए, गुरगद्दी मैनूं मिल जाए, मैनूं ना मिले मेरे पुत्र मेहरबान नूं मिल जाए। उदों मेहरबान दा पुत्र ते होया नहीं सी, बाद विच होया हरजी जी दा प्रबंध सी नौवें पातशाह जी दे समय जदों दरवाजे बंद कीते सन ना, महाराज नूं अंदर नहीं सी जाण दित्ता, उदों उहदा प्रबंध सी उत्थे दरबार साहब, बाद विच छड्ड के भज गए सन। चलो लम्मी विचार है, उन्होंने ये सी मेरे पुत्र नूं मिल जाए गद्दी, पर फिर भी उन्हें देखो किड्डी कुझियां चालां चलियां। सब तो पहला महाराज सच्चे पातशाह जी जदों हजी जन्म होया एक औरत नूं साध संगत पैसे देने कबूल ले, 200 चांदी दे सिक्के दिते, तू इदां करी तू बालक हरगोबिंद साहब नूं अपने छाती दे उत्ते कह लो कि जहर ला के बच्चे नूं दुध जंगाण दे बहाने भाई जहर पिला दे, बच्चा मर जाए ते तेरी सारी जिंदगी असी सेवा करांगे। पर साध संगत कहंदे ना मारन वाले तो रखण वाला वड्डा, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावा। ये नहीं कि मुकर गई, उन्हें आख्या हाँ मैं कर देंगी काम। वो आई माता गंगा जी नूं आखण लगी
बड़े गहने गट्टे पा के आई कि बड़ी बन के आई। कहन लगी कहती मैं जी दे बच्चे नूं दुध चुंगा देवां ना, वो बच्चे नूं रोग नहीं लगता, बड़ा तंदुरुस्त हुंदा है। ते देख मेरे कोल किन्ने गहने बड़े अमीर लोगों ने दिते आ, माई तेरे बच्चे नूं दुध चंगाना है। किहड़ी माँ है दुनिया दी जिहड़ी ये ना चाहेगी कि मेरे बच्चे नूं कोई रोग ना लगे, मेरा बच्चा तंदुरुस्त रहे, ढिला मट्ठा ना होवे। उन्होंने ये होंदा है बोलदा नहीं, छोटा है, पता नहीं कोई पीड़ा ना होवे, हाए कोई उन्होंने दुख ना होवे। इसलिए मावां अपने बच्चों लई बहुत कुछ कर गुजरदियां ने जो लिखत तो शब्दों तो बाहर दीयां गल्लां सन। माता गंगा भी एक मां है। माता ने आख्या, कहन लगी लियाओ मेरे बच्चे नूं चंगा दो, पर उहदे मन च पाप। उन्हें ज्यों दुध चंगाया, परमेश्वर वाहिगुरु क्यों गुर परमेश्वर एको जान। बंदे नाल तां ठगी कोई मार ले, फरेब कोई कर ले, हिसाब तां उहदा भी है, पर गुरु नूं किहड़ा ठग ले सत्संग, रब नूं किते ठगिया जा सकदा। नर चाहत कछ और है की और है भई, चितवत रहो ठगौर, नानक फांसी गल भरी। ज्यों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी नूं दुध चंगाण लगे, साध संगत उन्होंने जहर अस्थना दे राही अपने आप नूं चढ़ गया शरीर नूं। वो इंसान हमेशा दुखी होएगा जिहड़ा दूजियां दे लई दुख वंडदा है। गुरबाणी च सुखमनी साहब तुसीं पढ़दे, महाराज कहंदे तुसीं सुखी होना चाहुंदे ना, कहंदे जी हर कोई चाहुंदा है। तू चाहुंदा मैनूं दुख ना लगे, कहंदे जी हाँ। कहंदे एक तैनूं कुंजी दस दना जिंदगी भर दी, कहंदे जी की, पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत, बाणी दा फैसला। कहंदे पराए दा किसे दा बुरा ना चितवी, बुरा ना रखी, छड़ दे बुराई करनी, कोई करदा करी जाए। कहंदे लै तैनूं दुख नहीं लगेगा, नानक लहरी लख सैयाण, डुबण दे ना मापिरी। कहंदे मेरा प्यारा लखां ते सैकड़े हज़ारां भी लहरां आ जाण ना कट्ठियां ही, समुंदर दे विच डुबण नहीं देंदा, संसार समुंदर चों कढ लैंदा है। ओ मैं यतन करांगा कि गुरमत फिलोसफी थोड़ी जी मैं घट रखा, थोड़ा जा इतिहास ते मैं गल करांगा, क्योंकि फिलोसफी है जिहड़ी वो तां फिर लम्मी चली जाती है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी नूं वो दुध चंगाण लगी, सासंग जहर चढ़िया, आपे ही मर गई। मरदी मरदी दस गई कि मैनू इउं करके पिरथी चंद ने इन्ने पैसे दिते, उहदी घर वाली करमों ने, मैं तां ये काम कीता सी। ते पहला हमला दूजा भी होया, एक खड़ावा सी ब्राह्मण रखिया सी। हुण इहनूं किसी जाति नाल ना जोड़ के देख लेना कि मैं किसी ब्राह्मण की निंदा करदा जां किसी होर दी, पर वो ब्राह्मण सी, वो रखिया सी। उहनूं पिरथी चंद ने पैसे दिते, पैसे दे के आख्या कि तू इउं करी, तू इन्हां नूं दही पिलाउणा ना, दही च जहर मिला दे। बंदे देखो किन्ने डिग गए होणगे इंसान इंसानियत तो, जो अपने सखे भतीजे कई सालां बाद जी दा जन्म होया होवे, अपने उहनूं मारन दीयां गोंदां गुंददे होण। कि वो गुरु बनने का कोई हक अधिकार रखते सन? बिल्कुल नहीं, पर चाहते सन कि बन जाइए। ऐसा ही होया। उन्हें साध संगत पैसे लैके हरगोबिंद साहब महाराज नूं खड़ाउण चला गया, चवारे विच खड़ा रहा सी ते दही विच जहर मिला दिता शांखिया, ते जहर मिला के ना जी पलाण लगा। श्री हरगोबिंद साहब ने दही रोज लेंदे सन, लैण तो ना कर दिता, सिर मार दिता। धक्के नाल पिलावे पीण ना, हजे बचपन। जदों ना हटे थे चीख मार दी उच्ची। जदों उच्ची चीख मारी, बेड़े विच थल्ले मां, थल्ले गुरु अर्जन देव महाराज सारी। उन्हें आख्या क्यों रोंदा पिया मेरा बाल? मां मां माता गंगा कम छड्ड के एकदम गई, फड़ लिया बालक नूं। अगों कहन लगा, कहंदा जी मैं तो दही खवाना, दही नहीं खा रहे। माता जी कहंदे दही नहीं खांदे। गुरु अर्जन देव जी कहंदे लियाओ साडे कोल,
लियाओ मेरे कोल मेरे बच्चे नूं। फड़ा दिता गोद च, कहंदे लियाओ दही, उरे लियाओ। वो ब्राह्मण बड़ा खुश। देखो किड्डे पापी लोग है। मन च ये भी मैं खवाउणी सी तां होर गल हो जू, अज प्यो पुत्त नूं अपने हत्थीं जहर दे देगा, किड्डी गल होएगी। जदों महाराज ने दही इदां चुक्की ना, मूँह वल नूं लाया, उन्हां दे बालक सन, अखां चों हंझू आ गए। वो शरीर छोटा सी, जोत नहीं छोटी वड्डी होया करदी। अवतारी पुरुष हुंदे जिहड़े वो शरीरां दे मोहताज नहीं हुंदे। छोटा शरीर है कि बड़ा शरीर है, वो तो 8 साल की उम्र विच भी गुरु है साध संगत। वो तो 7 साल की उम्र च भी नीहां च खड़ के जकारे लाउंदे आ। उन्हां दीयां गल्लां होर ने। इत्थे असीं 80-80 साल लंघा के भी साध संगत कोई मत की सियाणप की गल नहीं कर पाते। उन्हां ते वो रब्बी रूहां, वो तो खुद नारायण, आप नारायण कलातार। उन्हां पता नहीं गुरु अर्जन देव महाराज ने नेत्रां च तक्या, अंदरों अंदरी की खेड़ वरती, इशारा किया ते मानो कहना चाहुंदे सन, पिता जी इहदे विच जहर है, मैं पीना नहीं, पर जे तुसीं कहो ते मैं पी लैना। गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे नहीं पींदे साहिबजादे, रहण दो बई दही च कुछ है। महाराज कहंदे, ब्राह्मण कहंदा जी दही च की होना, कुछ भी नहीं। देखो महाराज दे घर एक कुत्ता सी, कुत्ते का नाम सी पिस्ता। गुरु हरगोबिंद साहब, गुरु अर्जन देव जी दे कोल एक कुत्ता सी, काले जे रंग का, बड़ा सोहना नस्ल का पिस्ता। महाराज ने आख्या, पिस्तिया लै अज तेरी सेवा की लोड़ है। महाराज ने वो की कीता, साध संगत पता नहीं किहड़े जन्मां दा भटकदा आउंदा होना। गुरु नानक दे घरें ओहदा वो दही महाराज ने ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਥੱਲੇ। ਜਿਉਂ ਦਹੀਂ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟਪ ਟਪ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਈ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਉਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜੀ, ਦਰਦ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, तड़फन नहीं दिता, उसकी जान निकल गई। उत्थे फिर वो फड़िया गया ब्राह्मण। फिर वो ब्राह्मण ने फिर दसिया कि महाराज मेरे तो ये गलती हुई। वो दुष्ट ब्राह्मण सूल नाल मरिया। साध संगत मरदे मरदे ने सारी गल दसी। दूजी घटना हजे बोलन भी नहीं लगे, तीजी एक होर सुना देवां। जिस वेले थोड़े जे रिड़न लगे, पिरथी चंद ने आख्या लै जे होर नहीं कुछ हुंदा, एक जोगी सी घुमदा फिरदा, उहनूं पैसे दे दिते कि तूं ऐ करी जिथे बालक हरगोबिंद साहब खेड रहे होणगे ना, उत्थे चुप करके एक बहुत जहरीला सप बालक दे कोल छड्ड देई, डंग मार दे, पता भी ना लगे कंडा चुभे कि की होया, बालक दी मौत हो जाएगी। ऐसा ही होया। वो कह लो वो जिहड़ा जोगी सी, जोगी कहदा सपेरा सी, जोगियां नूं तां बदनाम कर दे, जोगी ते जोग जुड़े हुए दा नाम हुंदा है। गल्ली जोग ना होई, एक दृष्ट कर संसार जाना है, जोगी कही है सोई। वो सप फड़न वाला सपेरा, उन्हें सप महाराज दे कोल छड्ड दिता। ते साध संगत महाराज सच्चे पातशाह ने वो सप ज्यों नेड़े आया, हथ नाल फड़ लिया, उसदी सिरी फड़ लई, ऐसा पकड़िया, फेंके रख दिता। 3 हमले कीते, पर साध संगत तिन्ने हमलियां दे विच वो दुश्मन नाकामयाब रहा। फिर ये सीधे हमले सन। एक ऐसा भी होया, हजे छोटे ही सन, श्री हरगोबिंद साहब महाराज, उन्हां दे शरीर ते जिन्हों तुसीं माता कहंदे ना, मैं तो नहीं कहता, बीमारी है चेचक दी, फिणसियां जो हो जांदियां, पर साडे लोग बीमारियां नूं भी माता कहंदे आ। ये दुख दी गल है। ते ठग्गां नूं पिता जी बना लैंदे आ, जिहड़े सिरे दे ठग हुंदे, आखे जी पिता जी है। वो चेचक दी बीमारी हो गई, पूरे शरीर दे उत्ते फिलकरे हो गए, इत्थे तक मूँह दे विच फिणसियां हो गईयां, अखां दे उत्ते फिलकरे हो गए।
ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ 100 ਚੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਏ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੈਰਾਗ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਟਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਟਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੀਤਲਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਤਲਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹਟਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ 100-100 ਸਜਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 200 ਸਾਲ 250 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲੇ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਜੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੁੱਛ-ਫੁੱਟ ਸਨ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਉਂਝ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ। ਇਕੱਲੀ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚੰਦੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਲੁਟੇਰੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਠੱਗ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਧਾੜ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਵਾਏ ਸਨ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਐਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਲਾਗੀ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ,
गुरु हरगोबिंद साहब दे गुरु अर्जन देव साहब दे पुत्र गुरु हरगोबिंद साहब हैं, उन्हां नाल रिश्ता कर दईए। पुछण आए सन, कहंदा तुसी जे तुसी हाँ करे आए हो जां गलबात करे आए हो, तुसी साडी चवारे दी हवेली दे इट मोरी नूं लाती थल्ले। गुरु घर नूं नीवा आख्या, अपने आप नूं उच्चा आख्या। संगत दिल्ली दे ने लिख भेजिया, महाराज ते हुण इदां दीयां गल्लां करदा, इहदे नाल रिश्ता जे ना जुड़िया ते जोड़ियो ना। महाराज ने ना कर दित्ती कि रहण दो भाई, गुरु घर दे अंदर ते प्रेम वाले निमरता वाले समाउंदे आ, इत्थे ते इह हंकारियां लई थां नहीं। ना कीती, इन्ना हंकार मन्निया इस पापी चंदू ने, अंदरों ईरखा रखी ते गुरु अर्जन देव साहब महाराज के खिलाफ चलदा रहा। भावें कि कई सारे उहदे पिछे बंदे सन, कई कारण बने। जदों गुरु अर्जन देव साहब महाराज लाहौर गए ना, फिर हुण उन्हां दी शहीदी का एक वखरा टॉपिक है, जे मैं उत्ते चला जावांगा फिर इधरला इतिहास रह जाएगा। जान तो पहला गुरु बिलास पातशाही से 6वें विच ये शब्द मिलते हैं कि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी नूं गुरु अर्जन देव जी कह गए सन। बंसावली नामे पातशाही दसे पातशाहियां दा जिहड़ा बंसावली नामा है सरदार केसर सिंह छिब्बर दा, उहदे विच भी मिलते हैं कि गुरु हरगोबिंद साहब नूं गुरु अर्जन देव जी कह गए सन कि अगर असी चले गए, असी उत्थे जाके लाहौर विच हरेक वो गल करांगे जिहदे नाल प्रेम नाल काम हो सके, शांति नाल गल निबड़ जाए। प्रेम की गल करांगे, शांति की गल करांगे, सबर की गल करांगे। असी सबर की इंतहा कर देंगे, शांति की इंतहा कर देवांगे, उस तो उत्ते प्रेम कोई कर नहीं सकेगा। पर जे फिर भी ये जालम प्रेम की भाषा नहीं समझते, शांति की भाषा नहीं समझते, श्री हरगोबिंद साहब नूं कह गए सन महाराज जी कि फिर तुसी इन्हां नाल उस भाषा च गल करियो जिस भाषा च इन्हां नूं गल समझ आउंदी है। क्यों मायाधारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुनी बहु रोल कचोला, उन्होंने शब्द की समझ नहीं आती। फिर जे वो जालम शब्द की गल नहीं समझता तो फिर शस्त्र की टणकार ते कन्ना तक पहुँचती हो है ना। पुछे ही सी जदों गुरु साहब कश्मीर गए सन ना जी, कश्मीर तो वापस आए श्रीनगर, उत्थे शिवाजी मरहट्टा जिहड़ा राजपूत जिन्हों पूजते हैं, उन्हां दा गुरु सी समर्थ रामदास नूं कहंदे सन। वो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह नूं मिलिया सी। उहने महाराज नूं आख्या सी, कहंदा मैं ते गुरु नानक दे घर बारे सुनिया सी। सुनने वाली गल है, आऊँगा मैं उत्थे पिछली लड़ी ते, पर यह गल भी सुना देवां। उहने आख्या सी मैं गुरु नानक दे घर बारे सुनिया सी, इत्थे फकीरी दी गल है, पर तुसीं ते शस्त्र रखे है, तुसी ते आ शाही लिबास है तुहाडा, ते ये कादे वास्ते, इहदा की मतलब है। गुरु हरगोबिंद साहब ने उसनूं आख्या सी रामदास समरथ नूं कि जिहड़ी पीरी है उते है धर्म की गल, उते गुरमुखां वास्ते, उते जग्यासुआं वास्ते लाहा लै सकदा है, पर जिहड़े शस्त्र ने ना साडे एक गरीब की रखिया अते जालम की पखिया वास्ते ने, ये गरीब नूं मारन वास्ते नहीं रखे। किरपान है, किरपा आयन किरपा दा घर है। जदों भी गुरसिख दी गुरु घर दी जां गुरमुख दी तलवार उठी है, श्री साहब उठी है, साध संगत उन्हें रख्या की है, किसी नूं मारिया नहीं, किसी ते जा देख लो, तुसी इतिहास पढ़ लो। 6वें पातशाह ने 4 जंग कीते आ जिहड़े मेन वड्डे इतिहास च आउंदे आ, एक च भी महाराज ने आप हमला नहीं किया। 10वें पातशाह दे 14 वड्डे जंग मिलते। प्रिंसीपल सतबीर सिंह की एक बड़ी प्यारी पुस्तक है गुरु पातशाहां दीयां जंगां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। पर ਜਦੋਂ छोटे मोटे होर भी कोई झगड़े हमले छोटे छोटे देखते हैं तो 17 जंगां का भी जिक्र इतिहासां च मिलता है, पर किते एक भी गुरु साहब ने आप हमला नहीं किया, शस्त्र दे नाल केवल रखिया की, चढ़ के आया, उन्होंने जवाब दिता, किसी दे उत्ते चढ़ के नहीं गए। ते गुरु अर्जन देव महाराज कह गए सन
ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ। ਉਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਹੈ ਐਸੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੈ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਲੇ ਸਕਤੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਦੇ, ਜਰਵਾਣੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, गुरु ने बख्शिशां कीतियां, जिंदगियां दत्तियां, जीवन दान दत्ता, ते ओही तलवार औरंगजेब दी जेड़ा साध संगत खून बहा दत्ता, ओही हिटलर, ओही चंगेज खान, शस्त्र दे ओही लोहे दे बनदे आ, पर ओ शस्त्रां दे उत्ते प्रेतां दा पहरा, ये शस्त्रां दे शहीदां दा पहरा, कह लो शुद्ध रूहां दा पहरा। इन्ना फर्क है साध संगत। ये शस्त्र चलता है तो देवते बना दिंदा है, वो शस्त्र चलता है तो राक्ष बनते हैं बंदे। तो गुरु हरगोबिंद साहब, गुरु अर्जन देव जी लाहौर गए, उन्होंने शांति दे पुंज सतगुरु ने तत्ती तवी ते बह के सत्संग शहीदी प्राप्त कर ली, शहादत हुई। तो धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह गुरियाई गद्दी ते बैठे, गुरियाई गद्दी ते बैठे। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह नूं बाबा बुढ़ा साहब ने महाराज दे हुक्म के अनुसार, गुरु अर्जन देव जी पहले ही कह गए सन, कोई इदा नहीं। इतिहास विच कई थाई ऐसा भी कई इतिहासां 'च लिखिया मिलता है कि बाबा बुढ़ा साहब श्री साहब पाउण लगे महाराज दे, एक मतलब खब्बे पासे पै गई ते जनी गलत पै गई। महाराज ने आख्या हो लियाओ दूजी, लियाओ दूजी भी पा दो, चलो हुण दो पाया करांगे। ऐदां कोई गल नहीं हुंदी कि गलती नाल, गलती नहीं गुरु करदा, गुंजाइश नहीं गलती, गलती तो इंसान करता है, रब नहीं। भुल्लण अंदर सब को अभुल गुरु करतार। गुरु ते जो करदा हुक्म च ही आ, उन्होंने सब पता है, वो करता तरता हरता है। गुरु सर्व कला समर्थ है। गुरु आने वाले दियां भी जानदा अगे की होएगा। गुरु नूं अज दा भी पता है, गुरु नूं कल दा भी पता है जो हो चुका है। गुरु गई नूं मोड़न वाला है, गई वहोड़ है, जिहड़ी लांघी उहनूं मोड़ के लिया सकदा है। बंदी छोड़ है, वो निरंकार है, वो दुखां नूं दुखदारी, दुख कट्टण वाला। गई वहोड़, बंदी छोड़, निरंकार, दुखदारी है। गुरु बारे इदां दियां गल्लां किते लिखियां मिल भी जाण ते फिर साध संगत जिहड़े विद्यालय है या कॉलेज है या उस्ताद लोग इसे लिए वो पढ़ाउंदे आ कि तुहानूं लिखतां 'च तां बहुत कुछ मिल जाता है, तुहानूं इन्हां चीज़ां दा पता रहे कि किहड़ी चीज़ गुरु के सिद्धांत अनुसार है, किहड़ी नहीं है। तो बाबा बुढ़ा साहब ने आप महाराज साहब सच्चे पातशाह नूं दो श्री महाराज ने, एक खब्बी साइड एक सज्जी साइड, दो श्री साहबा महाराज ने पहनियां। दो श्री साहबा महाराज गुरु हरगोबिंद साहब ने पहन के बचन किया। गुरु साहब कहते ये एक मीरी दी, एक पीरी दी। पीरी दी पीरी मिलती है सानू गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का उपदेश, बाणी पढ़नी, नाम जपना, सेवा सिमरन करनी, ये पीरी है। मीरी साध संगत जालम जरवाने नूं जुल्म करन तो रोकना, चढ़ के आए दे दंद खट्टे करके भेजना, ये मीरी, ये साध संगत मीरी है। मीरी अते पीरी दोवें ही। ते महाराज ने तख्त ते बह के बचन किया। इतिहास में आउंदा श्री गुरप्रताप सूरजंदर कवि संतोख सिंह लिखते हैं कि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने बैठते ही तख्त ते वचन किया, जिस जालम ने गुरु अर्जन देव साहब महाराज साहब नूं सजावां दित्तियां, वो जालम नूं बख्शिया नहीं जाएगा। ज्यों तख्त ते बैठे ये ऐलान किया ते साध संगत शस्त्र धारण किते। ये नहीं कि कल्ले दुश्मन दूजे लोग रामदास समरथ वर्गी शंका करते सन। भाई गुरदास ने लिखा, कहते कई सिख भी ये सोचते सन भी इन्हों ने तो जी शिकार खेडना शुरू कर दिता, शस्त्र धारने शुरू कर दिते, ये तो जी जंगी काम शुरू कर दिता, ये गुरु नानक के घर नालों कोई वखरेवा पा दिता। पर ऐसा नहीं सी।
कुछ भुलेखे च कई बंदे भी आए, कुछ मसंद भी माता गंगा जी को चले गए। माता जी ने आख्या, माता जी इन्ना बचन किया, जिस जालम ने गुरु अर्जन देव महाराज नूं शहीद किया उन्होंने बख्शा नहीं जाएगा, ओदी कीती दी सजा मिलेगी इस धरती ते भी, दरगाह ते देवांगे देवांगे। ते ये ना होवे उदों तक जिहड़ा दीवान तुझके जहांगीरी वाला जिहड़ा बाद विच होना है ना, 10-20 सालों चो प्रचार होने लग्या कि तुझके जहांगीरी जहांगीर ने लिखिया मिलता है। हालांकि तुझके जहांगीरी कोई इन्नी अथेंटिक नहीं है, कोई पक्का प्रूफ नहीं है, ये बारे पक्का नहीं मिलता कि तुझके जहांगीरी सच्ची जहांगीर दी है सारी है, क्योंकि उहदे विच बहुत कुछ मिलता जो बाद विच दियां सूचनावां ने, आ कुछ होया आ कुछ होया, वो बाद विच दरबार दे होर बंदियां दियां हन। हो सकदा उहदे विच कुछ जहांगीर दी होवे, पर जो साडे इतिहास च मिलदा है उहदे तुझके जहांगीरी दा किते जिक्र नहीं है। कुछ बंदे साडे छाला मारनी अपनी ना विद्वता जी दिखाण दा बड़ा यत्न करनगे भी असी पता नहीं नवीं किहड़ी खोज कर दित्ती। भावें सारी साडे बजुर्गां दी कमाई मेहनत इतिहास नूं रद्द कर दईए, भावें उन्हां नूं इह भी ना पता लगे कि जिहड़ी असी गल कर रहे हैं साडे गुरु दे किन्नी खिलाफ जा रही है। जे जहांगीर दोषी सी पूरा ते फिर दीवान चंदू नूं नत्थ पा के गुरु हरगोबिंद साहब ने लियांदा ते फिर जहांगीर नूं भी लियाउणा चाहीदा सी नाल। वो जिन्ना दोषी सी वो गुरु जी दे सामने मन्निया, उन्हें वो सारा इतिहास च लिखिया मिलदा है, उन्हें अपनी गलती मन्नी है कि मैं इन्ना दोषी हाँ, मेरे को आ कुछ खबर आईयां, मैं आ हुक्म दिता, उस तो बाद आ दीवान चंदू दोषी है, इनू पुछो ते रहो। उधर नूं चलदे आपां। वो मैं गल तां दसी है जे गल दी डिटेल च ना जाया जाए ना, साडे विच चुंझ ज्ञानी बड़े तुरे फिरदे उस तरह दे है, लाइव चलदी है ना, मैं तां गल कर रहा। उन्होंने पढ़िया तो कुछ हुंदा नहीं, वो छोटियां छोटियां किताबां जियां अजकल दे ट्रैक्ट जे मिलदे आ छोटे छोटे, उन्होंने पढ़ के फिर थोड़ियां जिवें ना डिंगां दी मार लग जांदे। उन्होंने ये लगता भी जो असीं पढ़ लिया दुनिया के किसी बंदे ने वो पढ़िया ही नहीं। इसलिए उन्होंने भरावां नूं वीरां नूं बेनती करते हुंदे आ नाल नाल भी इउं ना करया करो, ये बहुत बड़ा समुंदर है ज्ञान का, इत्थे हंकार करना मान करना बेसमझी नदानी है। मस्कीन जी उदाहरण दिया करते सन बड़े विद्वान शुकरात दी, कहंदे जो कहंदा मैं जवानी जी जद हुंदा सी, जदों बचपन च सी ना उदों ऐ कहंदा मैनूं सब पता है, कहंदा जद मैं जवानी च गया कहंदा कुछ तो है जिहड़ा मैनूं पता नहीं, पता तो है पर कुछ चीज़ां ने जिहड़ियां हजे मैनूं पता नहीं। कहंदा जदों बुढ़ापे च गया उदों कहण लग्या मैनूं कख नहीं पता। ये तो बहुत वड्डा अथाह सागर है। इसलिए जिहड़ा गुर इतिहास है जां सिख इतिहास है, इतिहास भी 3 तरह का हुंदा है, कौमी इतिहास, सिख इतिहास और गुर इतिहास। गुर इतिहास विच गुरुआं दी गल, सिख इतिहास विच सिखां दा इतिहास, कौमी इतिहास विच कौम दे परवाने, सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह, सरदार करतार सिंह सराबा, जिहड़ा साध संगत जी तूफाना दा शाह सवार जिहदे बारे बड़ा सोहना सरदार अजमेर सिंह होना लिखिया पढ़िया जा सकदा। तो रहो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह ने जदों ये बचन किया ना, जिसने भी ये किया गुनाह उन्होंने सजा दी जाएगी। कुछ मसंद माता गंगा जी को चले गए, जिवें गुरु कलगीधर महाराज ने श्री साहब कढ़ के 1699 की विसाखी सिर मंगया सी ना, कई मसंद माता गुजरी जी को चले गए सन। पहली बार नहीं सी ये गल हुई, पहला भी चले गए सन। जदों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने मीरी पीरी की तलवार श्री साहबा पहनिया, उदों भी मसंद माता को चले गए। आख्या इदां दे ऐलान कर रहे हैं जिस जालम ने इस जुल्म किया उन्होंने सजा दी जाएगी, तुसी रोको। आपां किवें रोक लवांगे? उते दीवान चंदू सब नूं पता है, वो तो जहांगीर बादशाह का खाशम खास दीवान है, माल महकमे दे विच उहदा बड़ा उहदा सी दीवान सी, ते उहनूं किवें फड़ लवांगे? ये ना होवे किते जिवें गुरु अर्जन देव साहब नूं शहीद कीता है बुला के, ये ना होवे किते गुरु हरगोबिंद साहब दा भी नुकसान करे, जथेबंदी दा नुकसान होवे। तुसी गुरु जी नूं समझाओ,
ये गल आखी सी। धन है माता गंगा जी। उन्हें आख्या एक गुरु हन, ठीक है मैं मनदी हाँ मेरे पुत्र हन, मेरी कुखों इन्हां दे शरीर का जन्म होया, उन्हां मेरा अधिकार है, पर गुरु पदवी ते हन, ये जो कहते हैं जो करते हैं वो कोई अनजानपने विच नहीं। जेड़ा सिख है वो सच करके मनेगा, जेड़ा नहीं मानता वो सिख नहीं हो सकता। ते गुरु साहब ने तख्त ते बह के हुक्मनामे लिखवाए। बाबा बुढ़ा जी ने आख्या हुक्मनामे भेजो संगत नूं कि जिथे किते भी संगत है, ये मैं लड़ीवार सुना रहा तुहानूं ताकि इउं ना होवे कोई गल किते कोई गल किते। आउण वाले बुलारियां नूं भी सौखा रहिंदा है ते सुनने वाले श्रोतिਆਂ नूं भी पता रहिंदा है कि असीं किवें सुनिया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह ने हुक्मनामे गद्दी ते बहिंदे लिख के भेजने शुरू कर दिते कि जेड़ा भी सिख साडे दर्शनां नूं आवे साडी ओह ते बहुत खुशी होवेगी। जेड़ा कोई साडी बड़ी खुशी लैनी चाहुंदा है वो साडे लई सोहणे तो सोहणा शस्त्र लैके आवे। साडी खुशी ओते होवेगी जेड़ा साडे लई घोड़ा लैके आएगा। साडी खुशी ओते होएगी जेड़ा साडे अगे जवानी भेंट करेगा। बस साध संगत गुरु की संगत है ना जिहड़ी, ये गुरु दे हुक्म तो बाहर ही नहीं है। कोई माड़ा मोटा साध संगत कोकड़ू तो हर जगह ही हुंदा, कोई ना कोई कच्चे पिल्ले हुंदे ही है। निहंग सिंह कच्चा पिल्ला शब्द वरतदे आ, बाणी च भी लिखिया झड़ झड़ पवदे कच्चे बिरही जिन्ना कार ना आई। जिन्हां नूं प्यार करना गुरु दी कह लो रास नहीं ना आया, वो झड़ जाते कच्चे पिल्ले। पर जेड़े पक्के है ना, धनी विहूणा पाक पाट पटंबर भाहे सेती जाले, धूड़ी विच लुडंदड़ी सोहा नानक तै सह नाले। वो तो अपना आपा कुर्बान करन तक जाते हैं। सिखां ने ज्यों ज्यों पता लगा महाराज दा हुक्मनामा जान लगा ते गुरु प्यारे खालसा जी संगतां गुरु साहब दे लई सोहणे तो सोहणे घोड़े, गुरु साहब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे लई सोहणे तो सोहणे शस्त्र, गुरु साहब दे लई जवानियां भेंट, 500 सूरमियां दा जत्था महाराज गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने रखिया। पहले उन्हां नूं तनख्वाह भी मिलदी सी, उन्हां नूं लंगर मिलता सी और उन्होंने वस्त्र भी मिलते सन। दोवें टाइम का प्रशादा। बरजिशां होनियां शुरू हो गई, जय जयकार हो गई। तो साध संगत उन्हां टाइमां दे विच थोड़ा जिहा समा लग्या, दिल्ली दे वल्लों हुक्मरानां वल्लों हुक्म आ गया कि सारे हिंदुआं लई हुक्म सी। यह कोई उच्चा नीवा जात का नहीं सी कि प्रिंसीपल साहब दस रहे सन, मैं सुन रहा सी थले, क्योंकि मेरा जिथे मर्जी बैठिए जो घोड़े की सवारी नहीं करेगा, वो सिर ते कलगी नहीं लाएगा, दस्तार नहीं बनेगा। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ भी हुक्म सी कि उच्चे थड़े ते नहीं बैठेगा। जदों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं ये बेनती की गई तो सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब गरीब नवाज पातशाह ने आप हुक्म किया, सब तो पहला आप उच्चा थड़ा जिन्हों अकाल तख्त साहब कहने महाराज ने आप अपने हथी उस अकाल तख्त साहब की सिरजना की, आप नहीं रखी। गुरु हरगोबिंद साहब गरीब नवाज पातशाह ने श्री अकाल तख्त साहब जिहड़ा असीं दर्शन करते हैं ना, इनू सिर्फ बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास साहब अते श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज इन्हां गुरु हर इन्हां दे हथ लगे, इन्हां बनाया, किसी कारीगर तो नहीं बनवाया। ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने श्री अकाल तख्त साहब दा ओ बुंगा बना के थड़े उत्ते बैठ के महाराज सिखां दे जिन्ने भी कोई राजनीतिक, कोई धार्मिक, कोई समाजिक, किसी तरह के भी कोई
ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਬੇੜ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੇ ਫੇਰ ਕੰਨ ਭਰੇ। ਉਹਨੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਲੋਦਰ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣੀ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਉਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਇਲਾਹੀ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਸੁੱਟੀ, ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਵੱਜੀ, ਇਹ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਜਲੋਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਲ ਭਰ ਜਾਣਾ ਉਦਰ ਵਿੱਚ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਭਰੀ ਜਾਣਾ, ਅਫਾਰਾ ਜਾ ਰਹਿਣਾ, ਦਰਦ ਇੰਨਾ ਕਿ ਐ ਫਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਨ ਭਰਦਾ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਉਧਰ ਚਰਨ ਪਾਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। ਸਾਧ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਾਇਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਐਡਾ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੇਰ ਸੀ। ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਐਡਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਜਿਆ, ਜਿਸ ਹਾਥੀ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਹਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ। ਘੋੜੇ ਡਰ ਗਏ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮਰ ਗਏ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਭੱਜ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਐਸਾ ਭਰਮਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
पेट फट गया ते उहदा शिकार कर दिता। ते इन्ना हैरान होया जहांगीर बादशाह कि उहदी रूह एकदम सामने आ गई। जहांगीर बादशाह दे सामने वो शेर दी कहन लगा, महाराज एडा भयानक शेर किधरों आ गया? महाराज कहंदे कल्ला शेर नहीं, खेड कोई होर है। कहंदा जी की? कहंदे इहदा उधार करना सी असीं। कहंदा जी वो किद्दां? कहंदे तैनूं असीं दस दिंदे आं, इहदी रूह नाल गल कर लै। कहंदा जी मैं ते कर नहीं सकदा। महाराज कहंदे इन्नी क शक्ति असीं तैनूं कुछ समय लई दे दिंदे आं। उस वेले महाराज ने उहनूं ये नज़र बख्शी, ये कह लो कि रूहानियत दी, वो सामने रूह प्रगट हो गई ओहदी। उहने फिर दस्सिया, इतिहास च आउंदा साडे च, उहने दस्सिया जहांगीर मैं तेरे पिता अकबर दा रिश्तेदारी चो भरा लगदा, तेरा चाचा ताया लगदा। एक बार तेरा पिता गोविंदवाल साहब गया, गुरु उत्थे गुरु अमरदास जी सन। उस समय मैं नाल सी। कहंदा तेरे पिता ने गुरु अमरदास जी नूं मत्था टेकिया। तेरे पिता ने उत्थे लंगर विच बैठ के प्रशादा छकिया। मेरे मन च बड़ा इस गल का गुस्सा आया, ईरखा सी। मेरे मन विच आया कि ये बादशाह होके इस्लाम नूं मनण वाला ते एक इंसान दे अगे झुकी जांदा है। कुरान ते लिखिया ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है पूजन दे योग खुदा तो सिवा। ये अर्थ करते हैं। जब दूजे झगड़ा पा लेंदे इस गल ते, कहंदे खुदा नूं पिछों क्यों कहता है? ऐं कहा करो खुदा तो बिना कोई पूजन दे योग नहीं है दूसरा। इसे गल ते ही रौला इन्हां दा, बरेलवियां दा ते सुन्नियां दा। कहंदे तुसीं इउं क्यों कहने हो भी कोई नहीं पूजन योग खुदा दे बिना? इउं कहा करो खुदा दे बिना पूजन योग कोई नहीं दूजा। चलो आपां दोवें ही अर्थ कर दिते। कहंदे कहंदे मैं उस वेले इस गल का मैनूं अंदरों बड़ा शिकवा सी भी बैठ के बादशाह नंगे पैरी उन्हां कोल चल के गया। तेरे मेरे मन विच बड़ा दुख सी इस गल का। ते शाम नूं मैं अपने उहदे विच सी तंबू विच, उत्थे मास मूस तां रोज़ चलदा सी, मास शराब। कहंदा मैं मास खाधा, कच्चा मास सी, मेरे ढिड विच वो गलिया नहीं, मेरे ढिड च दर्द शुरू कर दिता। कच्चा मास होने करके मेरी इन्ना दर्द होया कि मैं करा उठिया। मेरे अखां दे सामने मौत मैनूं दिस रही सी। पर उस वेले मैनूं ये महसूस होया कि मैं रब दे फकीरां दे खिलाफ कोई वचन कर दिता। शायद मेरे ताइयों दर्द होया। मरदे मरदे ने मैं हाथ जोड़ ले कि ये ना होवे मेरी गलती दी मैनूं सज़ा मिले, मैनूं बख्श लियो पूरे गुरु। कहंदा ओदी सज़ा ते मैनूं मिली, मास खादा मैं शेर बनिया। पर अज मेरी वो कीती अरदास इन्हां पूरी कीती है। मैं उइयों आ ते मैनूं अज गुरु हरगोबिंद साहब ओही रूप ओही ने ना जो तोहा जुगत साए सहकाया फेर पलटी है। उसे गुरु ने अज 6वें जामे च मैनूं बख्श लिया। जहांगीर जे मौका मिलता है इन्हां दे चरण ना छड्डी। ते साध संगत क्यों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का वो हौली हौली फिर प्रभावित होंदा गया। जहांगीर बादशाह नूं फिर साईं मियाँ मीर ने गुरु साहब बारे किवें दस्सिया, किवें महाराज उन्हें आख्या सी महाराज साहब नूं हिंदू की ते फकीर की, औरत की ते पीर की, पुत्र की ते त्याग की, दौलत की ते विराग की। उन्हें आख्या हिंदू की ते फकीर की। हिंदू फकीर किवें हो सकता है? औरत की ते पीर की, जिहदे घर परिवार वाला होवे, औरत होवे, पत्नी होवे, वो पीर किवें हो सकता है? पुत्र की ते त्याग की, दौलत की ते विराग की। उन्हें सवाल किए सन चार मारन। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने उन्होंने आख्या सी, कहंदे दौलत गुजरान, औरत ईमान, पुत्र निशान ते फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। इस तरीके महाराज ने साध संगत थां थां जाके तारिया। चार जंगां भी कीतियां, बचन भी सिखां नूं किया, बाज नहीं हम इन्हां ते लेना।
ताजबाज सब इन ते लेना, वो सारा बड़ा महाराज दा बड़ा इतिहास है। आपां अज इत्थे तक जहांगीर बादशाह ते शेर दे शिकार तक दी गल आपां कीती आ। हुण मेरा समा हो गया। कौम दी बहुत सत्कारत शख्सियत मेरे बहुत अजीज सत्कारयोग भाई बलदेव सिंह जी बुलंदपुरी साहब, महाराज ने इन्हां दे साडा प्यार लगभग मेरे ख्याल 2-3 साल पहला असी पाकिस्तान गए सन इकट्ठे ही, ते उदों भाई साहब होनी भी गए सन, मैं केसगढ़ साहब तो गया सी, कई दिन इकट्ठे रहे। बड़ी प्यारी रूह है, बड़ा मिलापड़ा सुभाव है, गुरु नाल प्यार करने वाले है, रागी भी बड़े है, प्रचारक भी बड़े है, ढाडी भी बड़े है, पर विरले ऐसे भी है इस पंथ च महाराज ने जिन्हां ते बख्शिशां कीतियां जिहड़े गुरसिख भी है। उन्हां विरलियां चों भाई बलदेव सिंह जी ने, जिन्हां नूं तुसीं टीवी चैनलों के दर्शन करते, अपना दरस प्यास इन्हां दा यूट्यूब चैनल भी है। दरबार साहब हरमंदर साहब तो अक्सर हाज़री भरते रहंदे आ। मानयोग हैड ग्रंथी साहब बड़ा प्यार करते हैं, वो अपने जत्थे समेत पहुँचे है, उन्होंने हाज़री लवानी है। और मेरे बहुत प्यारे इस गुरु घर दे हैड ग्रंथी भी है और कीर्तनीय बड़े विद्वान, बड़े गुण है इन्हां च। भाई सुखविंदर सिंह जी जवद्दी वाले, हुण ते मैं कहना कि 5 तीर्थ साहब वाले है ये। इन्हां दा इत्थे इस स्थान नाल ऐसा प्यार है, पूरे हिंदुस्तान च घूमदे आ जी भाई बलदेव सिंह जी। इन्हां दे कीर्तन नूं दुनिया इन्ना पसंद करदी है। मेन दिनां दे इत्थे भी प्रोग्राम होंदे आ ते इन्हां नूं बाहर भी जाना पैंदा है, पर साडे सत्कारयोग प्रबंधक है प्रिंसीपल साहब, वो बड़ा सुचज्जा प्रबंध सामभदे आ। इन्हां ने हुक्म किया, मैं संगत तो भरी संगत च माफ़ी भी मंगदा एक गल दी कि मैं गुरु नानक देव साहब जी का शायद प्रकाश पुरब सी या गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का सी, मैं भुल गया। उदों मैनू इत्थे आउणा सी, मैं शाम रात का प्रोग्राम सी, पर मैनू जम्मू जाना पै गया, मेरी ड्यूटी लग गई श्रोमणी कमेटी वालों, दिन का प्रोग्राम से। ते जिहड़े किसी मैंबर तो या प्रधान तो किते साडी ड्यूटी लवा लैंदे आ ना जी कमेटी वाले, फिर वो प्रबंधक समझते भी ये नौकरे आ बंदे साडे। हुण असीं जो ये साडी दुख की गल है, जदों असीं किते इदां ड्यूटी ते चले जाइए ना, वो फिर साडी बड़ी नरादरी करते हैं। मेरा टाइम 10 बजे का सी, उन्हें जाके मैनू 3 बजे टाइम दिता, बिठाई रखा मैंने, सरो जिहड़ा कोई आवे जी सरोपा पा दे इहनूं, ते मेन प्रकाश पुरब दा दिन। ते फिर असी गड्डी रस्ते च साडी जांदियां गड्डी खराब हो गई, उन्ने कोल असी किराए ते गड्डी करके लैके गए, साडी किते कुदरती हो गई जिहड़ी असी उत्थों कीती गड्डी। असी जदों आ रहे जम्मू तो कुदरती पता नहीं उदों की चल रहा सी, कोई इस तरह का कानून कड्ढा सी आ सरकार, मोदी सरकार, तुहानूं पता ही है कानून पंगे च पाउंदे रहिंदे आ ये जदों दी सरकार बनी आ। ते उदों की कीता, एक रोड एक साइड बिल्कुल जाम करती इन्हां ने, मिलटरी दियां गड्डियां जा रही सन, एक रोड हो गया वन वे, उधर दी एक पासे आउणा जाम बड़ा लग गया। ते इन्नी मजबूरी बनी मेरी, मेरा दिल बड़ा सी मैं पहुंचा पर मैं पहुंच नहीं सकिया। मैं उहदी माफ़ी भी मंगदा ते अगे नूं आस भी रखदा, इस तरह संगत प्यार करती रहेगी ते इस तरह ही गुरु साहब हाजरियां लवाउंदे रहन। सबना दा धन्नवाद, प्रबंधकां दा धन्नवाद, सारियां संगतां दा, गुरु साहब दा होईयां भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।